Hello students, today in first chapter, first of all we will take the crystal structure of NaCl, sodium chloride, and one question based on it. Okay, let's start. See, question is calculate the number of molecules per unit cell of NaCl. See, in the crystal structure of NaCl, here is Na plus. See, this one is Na plus. Okay, and the Cl minus ions are attached at the center of face. So there are 6 faces. Okay students, so this one is Cl minus. So now here we are taking at all places the Na plus ions. Similarly here, okay, so at remaining places we are taking the Cl minus ions. Cl minus at all the corners and all the faces. Okay, now if I write the number of Na plus ions in a unit cell, so where are the Na plus ions situated? So Na plus ions kahan pe? Ek to intermediate, so this one is one, that is body centered. Okay, and edge center, total number of edges are 12. Say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, then 9, 10, 11 and 12, and on each edge 1/4 part is covered, so total number will be 4. Similarly, number of Cl minus ions in a unit cell, so this number is Cl minus ions are at all the corners, 8 corners, on each corner 1/8 part is covered, so this one is corner. Okay, and plus the other ions are at the face center. Total number of faces are 6 on each face, half part is covered. So here also number is 1 plus 3, number 4, so that number of Na plus ions are 4, number of Cl minus ions are 4, so number of molecules per unit cell is 4. So this is our answer. So students, here I am writing one question. In comment section, tell me the answer of this question. How many unit cells are there in 1 gram of NaCl? I think you know the atomic masses, even though I am writing. Okay students, now try yourself and give me the answer in comment section. Next one. Next we are taking the closed packed structures. So students, we know that in
इन क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट इन वन डायमेंशन, तो वन डायमेंशन में एटम्स कैसे सेट है, ओनली इन वन लाइन। ओके, तो यहां पे हम देख सकते हैं देयर इज ओनली वन वे ऑफ अरेंजिंग द स्फीयर्स इन द वन डायमेंशन। ओके, दैट इज ओनली वन रो ऑफ इट। तो अब यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मींस द नंबर ऑफ एटम्स दैट इज स्फीयर्स आर अरेंज्ड टू एनी वन। चलो ये अगर हम कंसीडर करते हैं तो इसके अराउंड कितने एटम्स होंगे, 2। सो रिमेंबर दिस नंबर, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 2 फॉर वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। ओके, तो यहां पे कोई भी एक स्फीयर उसके अराउंड 2 नेबर्स के साथ अटैच्ड है। नेक्स्ट वी आर टेकिंग क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। सी देयर आर टोटल 2 पॉसिबिलिटीज। चलो हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं कि यहां पे जैसी फर्स्ट लाइन है ना, वैसे ही दूसरी लाइन, वैसे ही तीसरी, वैसे ही चौथी। तो यहां पे टाइप ऑफ अरेंजमेंट होगा ए ए ए ए, ऐसे होगा। और अब अगर ये कंसीडर करते हैं तो उसके अराउंड, उसके सराउंडेड एटम्स कितने हुए, 1 2 3 and 4. So remember the coordination number in this type of 2-dimension arrangement is 4. Okay students, तो जो फर्स्ट रो है ना उसके जैसी सेकंड रो है, मतलब उसके नीचे ही देखो एटम सेट हुए। एक ये अरेंजमेंट हो सकती है। सी नेक्स्ट वन, इन दिस अरेंजमेंट फर्स्ट और सेकंड रो में देखो थोड़ा चेंज है। फर्स्ट रो तो हमने इसके जैसे ही रखी, सेकंड रो में जो एटम है वो फर्स्ट 2 के गैप जहां मिलता है ना वहां पे सेट है। So in this type of arrangement, suppose we consider any one atom, so at that time the other atoms are arranged in a hexagon structure. तो देखो कितने होंगे, so 2-dimension structure में इस arrangement में coordination number गिन लो, number is 6. So this is our 2-dimensional structure and here the type of arrangement is AB AB, मतलब ऐसा अरेंजमेंट चलती रहती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर टेकिंग क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। तो अब देखो इसमें टोटल 2 टाइप्स के अरेंजमेंट होती है। फर्स्ट हम लेते हैं SCP स्ट्रक्चर, सिंपल क्लोज पैकिंग। तो देखो हमने 2 डायमेंशन में ये लाइन ली थी, अब 3 डायमेंशन में इसके पीछे वाली जो लाइन है ना ये, तो उसके जैसे ही सेट होती है यहां पे। ओके, जैसी फर्स्ट लाइन है उसके जैसे ही ये सेकेंड लाइन है। नेक्स्ट, उसके पीछे थर्ड लाइन भी उसके जैसी। तो अगर फर्स्ट रो के कोई भी 4 एटम्स को हम ज्वाइन करें, ये मैंने पहले सिखा दिया है, तो हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा। उसके पीछे वाले जो मिलेंगे वो भी एक स्क्वायर ही है, देख लो। और 2 स्क्वायर को हमने यहां पे ज्वाइन किया है तो हमें पूरा एक क्यूब मिलेगा। सो दिस इज द प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये भी पहले हो चुका है हमारा। अब हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो उसमें हेक्सागोनल और फेस सेंटर्ड 2 अरेंजमेंट्स हैं। तो वो दोनों अरेंजमेंट मैंने क्रिस्टल स्ट्रक्चर टाइप्स में मैंने ले लिए हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां पे वॉइड्स। तो ये जनरली वॉइड्स होंगे FCC और HCP ही अरेंजमेंट। BCC में ये वॉइड्स होते हैं लेकिन इरेग्युलर होते हैं। और सेकंड उसके लिए एक परफेक्ट वर्ड है डिस्टोर्टेड, तो मतलब वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सी हियर वी नो दैट either we are taking FCC और HCP, तो उसमें जनरली कोई भी एक एटम हम लेंगे। तो यहां पे देख लो ये एक एटम, तो उसके सराउंडेड एटम्स कितने हैं, 6। तो यही अरेंजमेंट यहां पे हुई, कोई एक एटम तो उसके सराउंडेड 6। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहां पे उसके ऊपर वाला जो लेयर B है ना, तो वो सेट होगा। देखो फर्स्ट लेयर में एटम्स कहां पे थे,
तो फर्स्ट लेयर में 2 डायमेंशनल लेवल था और यहाँ पे एटम्स ऐसे सेट हुए हैं। उसके नेक्स्ट लेयर में उसके ऊपर वाला ये जो लेयर है बी लेयर, तो 1 2 3 के गैप के ऊपर ये सेट हुआ है। देखो जहां जहां गैप है ना वो हमने येलो कलर से कर दिया है और उसके ऊपर ही सेट है ये। थर्ड लेयर देखते हो तो उसके भी ऊपर वाला लेयर, अगर हम HCP लेते हैं तो उसमें थर्ड लेयर डिफरेंट होगा, और CCP लेते हैं सॉरी HCP लेयर अगर हम लेते हैं तो उसमें थर्ड लेयर विल बी सिमिलर टू A लेयर, ओके, और CCP में वो पूरा उल्टा होगा। तो अगर हमें HCP लेना है तो देखो लेयर 1 देन लेयर 2 और लेयर उसके बाद जो थर्ड होगा वो लेयर A ही होगा। तो ये है अपनी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर टेकिंग फर्स्ट टेट्राहेड्रल वॉइड। चलो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए पहले हम लेते हैं फिर से एक पूरा क्यूबिक स्ट्रक्चर। हम यहां पे लेते हैं CaF2 की अरेंजमेंट। CaF2 में सपोज Ca2+ हम एक यहां पे लेते हैं, यहां पे, यहां पे, फिर यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, ओके, सिमिलरली ऊपर। तो ये सब Ca2+ आयंस हैं। चलो अब हम एक क्यूब बाहर के साइड लेते हैं और वो क्यूब ये है, मतलब टोटल यहां पे हम देख सकते हैं 8 स्मॉल क्यूब्स है। तो उसमें से मैं यहां पे एक क्यूब हाईलाइट कर रहा हूं, फिर वो वही क्यूब हम आउटसाइड ड्रॉ करेंगे। ओके, तो यही क्यूब हम आउटसाइड ड्रॉ करते हैं। चलो यहां पे ओके, और Ca2+ एटम यहां पे हम इंडिकेट कर देते हैं, जो अंदर है वही। तो देखो एक यहां पे है तो वो यहां पे है, ये वाला बाहर है तो वो यहाँ पे होगा, ये वाला ऊपर है तो वो यहाँ पे होगा, और एक यहाँ पे होगा। तो F- तो वो तो अभी हमने बताया नहीं है, तो F- आयन वो होगा यहाँ पे मिडिल में। तो टोटल यहाँ पे कितने F- होंगे क्वेश्चन है, तो उसका आंसर है 8 होंगे। देखो एक यहाँ पे, एक इसके पीछे, एक यहाँ पे, एक इसके पीछे, मतलब जो यहाँ पे टोटल 8 क्यूब्स है। ओके, तो ये जो राउंड किया है दैट इज अवर F- आयन, एंड दिस F- is situated at the tetrahedral void. Yes students, दिस इज अवर टेट्राहेड्रल वॉइड। तो वो कैसे सेट हो रहा है देख लेते हैं हम, कि हमने ये जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो हम सपोज ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं और उसके ऊपर ये सेट कर रहे हैं, तो यहां पे ये जो गैप मिला ना, दिस गैप, मतलब तो इस गैप में सेट होते हैं अपने F- आयन। ओके, तो ऐसे टोटल कितने TD वॉइड्स हुए?
नंबर इज 8, देख लो 1 2, इसके बाजू वाला, इसके आगे वाला छोटा सा क्यूब, ये क्यूब क्यूब, ओके। तो टोटल 8 होंगे। तो अगर हम नंबर्स कैलकुलेट करें f माइनस, तो वो होंगे कितने 8। Ca2 प्लस, तो देख लो वो कहाँ कहाँ पे हैं, सब एजिस पे हैं। एजिस कितनी 12, हर एक एज पे 1/4 और बीच में एक पूरा बॉडी सेंटर, तो वो होंगे 4। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे होगा Ca2 प्लस और F माइनस, और वो रेशियो होगा यहाँ पे 4:8 एंड आवर आंसर इज 1:2। तो हम लिखते ही है Ca1 और F2। ओके, तो ये हमने यहाँ पे प्रूव किया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, चलो यही चीज देख लो, छोटी सी F माइनस, यहाँ पे मतलब TD वॉइड यहाँ पे होगा। देखो 3 एटम्स 1 2 एंड 3, तो उसके बीच में ये जो गैप मिलेगा वो होगा अपना TD वॉइड। चलो, तो टेट्राहेड्रल वॉइड देखो, अभी मैंने जो नंबर दिखाया था, दिस इज अवर टेट्राहेड्रल वॉइड। उसको हम अलग तरीके से देखते हैं। ये जो 3 एटम्स हैं उसके ऊपर जो सेट होगा, तो बीच में जो मिलेगा दैट इज अवर TD वॉइड। ओके, वही फिगर यहाँ पे हेड्रन के शेप में दी है। सो दिस इज अवर टेट्राहेड्रल वॉइड। नेक्स्ट वी आर टेकिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो स्टूडेंट्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो उसके लिए टोटल एक ऑक्टाहेड्रन बनना चाहिए। तो चलो उसके लिए हम एक सिंपल फिगर ड्रॉ करते हैं। NaCl हमने ड्रॉ किया था अभी रिसेंटली, तो उसी हिसाब से हम देखेंगे। देख लो, सपोज एक पूरा एटम यहां पे सेट है, ओके, तो उसके अराउंड उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। तो एक एटम यहां पे, दूसरा यहां पे, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन एंड सिक्स्थ वन। चलो अब हम यहां पे एक सिंपल लाइन ड्रॉ करते हैं। सिंपल से बात बताओ, ये कैसे किया है मैंने, कि सपोज हम जिस रूम में अभी आप खड़े हैं उसमें आप मिडल में हैं, तो आपको टोटल 4 दीवार मिलेगी, सामने वाली, पीछे, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो सब जगह पे हमने एक नेल, मतलब एक नेल लगा दिया है हुक टाइप का, और फिर हमने वहां पे नॉर्मल एक थ्रेड बांध दिया है। देख लो, ये तो ऐसे दिखेगा। ओके, फिर ऊपर पंखे के ऊपर एक हमने थ्रेड लगा दिया है। फर्स्ट, और फिर इसको चारों दीवार से हम ज्वाइन कर देते हैं। देख लो, सिमिलरली डाउन ऑल्सो, नीचे भी हमने एक लगा दिया है। तो मिडल में हमें जो मिलेगा ना, दैट इज our octahedral void. Okay students, so this is our octahedral void. तो अगर हम यहाँ पे Na+ लेते हैं तो सराउंडेड Cl आयंस हुए। ओके, तो जो ये जो मिडल में मिला ये है अपना ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देख लो, वही फिगर यहां पे दी है। ओके, तो मिडल में भी होता है और यहां पे भी पूरे छोटे छोटे 4 क्यूब हमने लिए, तो देखो मिडल में भी हमें मिलेगा। चलो HCP में कैसे दिखता है, देखो ये है अपना TD वॉइड और ये है अपना OH वॉइड, 2 हेक्सागोनल मिला के हमें मिलेगा। नेक्स्ट, वही फिगर देख लो, TD वॉइड की दी है। तो स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम देखते हैं, ये जो
ब्लू स्फीयर्स है वो सीधा ट्राइंगल बनाएंगे। ओके, ये जो जेड है ये उल्टा वाला ट्राइंगल बनाएंगे। तो मिडल में जो मिलेगा दैट इज अवर ऑक्टाहेड्रल होल। और हमें याद रखना है कि ऑक्टाहेड्रल होल वो किसी एटम से वो कभी कॉम्पैक्ट नहीं होगा, मतलब वो खुला ही होगा। नेक्स्ट देख लो इस फिगर में सेम वे दो फर्स्ट लेयर है ये अपना उल्टा वाला ट्राइंगल, ये सीधा वाला ट्राइंगल। तो बीच में जो गैप है दैट इज अवर ऑक्टाहेड्रल होल। और ऑक्टाहेड्रन देख लो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, लोकेशंस ऑफ द वॉइड्स इन अ क्यूब। फर्स्ट वी आर टेकिंग टीडी वॉइड, और यहां पे एटम्स है कहां पे, तो देखो मैंने अभी समझाया था CF2 में कि एटम्स है यहां पे, ये सब फेसिस पे हैं और कॉर्नर्स पे है, मतलब अपना FCC अरेंजमेंट है ये। ओके, और एटम है कहां, टीडी वॉइड है कहां पे, तो टीडी वॉइड इज सिचुएटेड if one cube is divided into 8 small parts and on each small part जो body centered area है तो उसमें होगा ये TD void अपना। तो ऐसे टोटल कितने 8 TD voids होंगे। ओके, नेक्स्ट OH void देखते हैं। तो स्टूडेंट्स OH void होगा, देख लो, बॉडी सेंटर्ड ऑफ वन FCC अरेंजमेंट। तो यहां पे अपना OH void और अरेंजमेंट है FCC। ओके, और वो होगा पूरा एक। एंड स्टूडेंट्स ये हमें याद रखना है कि सपोज वी आर टेकिंग 1 यूनिट सेल, तो दूसरा OH void होगा हर एक के एजिस पे। तो टोटल नंबर ऑफ एजिस कितनी 12 है, और हर एक एच पे कितना पार्ट होता है वो तो हमें पता ही है, 1/4 पार्ट होगा। तो कितने एटम्स हो गए 3, तो ये 1 एंड ये 3, तो टोटल नंबर ऑफ TD voids total number of TD voids are કેમ થાય છે So total number of OH voids are 1 plus 3, 4. नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स अब इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, तो उसका ये कंक्लूजन क्या है जो हमने ये वॉइड्स पढ़े। तो हमें यहां पे याद रखना है नंबर ऑफ TD void इक्वल्स 2 into नंबर ऑफ OH void। OH void 4 थे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो TD void मिलेंगे, और टू इंटू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमें याद रखना है। तो हमने यहां पे वॉइड्स कंप्लीट कर दिए स्टूडेंट्स। अब इसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, चलो वो हम देखते हैं। सपोज आई से suppose I say in solid compound A atoms have FCC arrangement and B atoms occupy
1/4 part of TD void. So find the molecular formula. चलो इसका molecular formula find out करते हैं. So first of all we know that A is FCC. So atoms होंगे कहां पे? Corners पे होते हैं और face पे होते हैं. Faces कितने? 6 into 1/2. So total number is 1 plus 3 4. चलो B कहां पे होंगे? तो TD void, तो TD void नंबर ऑफ TD voids कितने हैं? चलो ये 4 है तो ये होंगे 8 और पता ही हमें TD void जनरली 4 होते हैं और उसका कितना पार्ट ऑक्यूपाई हो रहा है? तो चलो दे दिया है आपको 1/4 तो यहाँ पे नंबर आएगा 2. सो दैट फॉर्मूला इज A is to B, ये हमें मिलेगा 4 is to 2, that is 2 is to 1. So the molecular formula is A2B. Next, चलो और एक क्वेश्चन हम देखते हैं. अगर आपको दे दिया है molecular formula and it is AB2O4. ओके चलो ऑक्साइड आयंस हैं FCC अरेंजमेंट में. A एटम्स हैं TD void पे और एंड B एटम्स हैं OH void पे. Then how much % of voids are occupied by A and B atoms? ओके स्टूडेंट्स पूरा उल्टा लिया है यहां पे. देखते हैं चलो क्या होगा. तो देख ले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पहले से दे दिया है, दैट इज आवर AB2O4. अब ऑक्साइड आयंस कितने? FCC अरेंजमेंट अभी हमने सीखा 8 into 1/8 प्लस 6 into 1/2. So this number is 4. चलो A कहां पे है? TD void पे. और नंबर कितने होने चाहिए TD void में? 8 हमें पता है तो लिख रहा हूं यहां पे इट शुड बी. तो 8 होने चाहिए लेकिन है कितने? 1. बट इन फॉर्मूला A is 1. देख लो लिखा है AB2O4. ओके सो हियर वी विल अप्लाई दिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 8 होने चाहिए तो ऑक्यूपाई हो रहा है 1. तो अगर 100 होते हैं तो फिर कितना % वॉइड ऑक्यूपाई होगा? सो दैट इज 100/8. सो आवर आंसर इज 12.5%. ओके बी कहां पे है? OH void पे. OH void कितने होने चाहिए? तो चलो वो हमें पता है 1 एक बॉडी सेंटर्ड और फिर 12 एजेस पे. तो 1 + 3 4 ये होने चाहिए. इट शुड बी 4 बट इन फॉर्मूला B = 2. देखो फॉर्मूला में दे दिया है 2. ओके तो इक्वेशन क्या बैठेगा? 4 होने चाहिए तो उसके सामने 2 ऑक्यूपाई हो रहा है तो 100 पे कितना? तो आवर आंसर इज 50%. ओके स्टूडेंट्स चलो अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखते हैं. चलो सेम फॉर्मूला AB2O4. ओके ऑक्साइड सेम FCC लेकिन यहां पे A एटम्स है OH void पे और B एटम्स हैं TD void पे.
और आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज सेम वे। तो कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स मुझे आंसर बताइए क्या होगा ये।